अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। जीन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन प्रोकैरियोट्स में हो या यूकैरियोट्स में, उसका सबसे बेसिक जो स्टेप होता है वो होता है सेंट्रल डॉगमा। एक्चुअली सेंट्रल डॉगमा जो है ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए टू प्रोटीन। First of all, DNA is our hereditary and genetic material, और इसी की अगर DNA की सेल्फ सिंथेसिस हो जाए तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेप्लिकेशन का। DNA से नेक्स्ट जो है वो RNA की सिंथेसिस होती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। फर्दर मोर RNA से जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एंड कन्वर्जन ऑफ RNA or the synthesis of protein from the RNA. This process is known as translation. Under some condition and circumstances, sometime this RNA molecule reverts back and synthesize the DNA, and this process is known as reverse transcription. चाहे यूकैरियोट्स हों या प्रोकैरियोट्स हों, उनमें फ़्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसका सीक्वेंस जो है वो सेम रहता है, डीएनए से आरएनए देन आरएनए टू प्रोटीन। हाउएवर जब हम डीएनए की रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं इन प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स, तो फिर वहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंसेस जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। आज हम एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट्स की अगर बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन में सबसे पहला काम जो होगा वो डीएनए की रेप्लिकेशन का होगा। सो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। In replication of the prokaryotes, the first step is the separation of these two strands of a DNA, and both of these two strands of the DNA served as template. For the replication of the new complementary DNA, the production of the two daughter molecules are formed, and each of these daughter molecules contain two DNA strands with the anti-parallel orientation. This process is known as a semi-conservative replication. We call this a semi-conservative replication because the parental duplex means to say the parental DNA is separated into two halves, and each of the individual parent strands remain intact with one of the two new duplexes. This is a complicated process and it requires a number of enzymes that are involved to complete this process. Now we move towards about the steps which is involved in the replication of the DNA in the prokaryotes. First of all, separation of the two complementary DNA strands takes place. Then formation of replication fork is occur. Direction of the replication, RNA primer, chain elongation, excision of the RNA primer and their replacement by the DNA ligase, and then at the end termination. वन बाय वन करके हम इन सारे स्टेप्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सेपरेशन ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। In order for the separation of the two strands of the parental DNA that to be replicated, it must be necessary these two strands of the DNA are separate apart from each other over a very small region. In case of the prokaryotes, DNA replication is begun at a small or a region which contain a unique sequence of the nucleotide, and this region where the unique sequence of the nucleotide is present is known as ORI, means to say origin of replication. This sequence is also referred as consensus sequence. Origin of replication
is a short AT-rich segments that facilitate the process of the melting. Our next step is the formation of the replication fork. As the two strands of the DNA are unwound and separated, so the synthesis occur at the two replication forks that moves away from the origin in opposite directions. In replication fork, two strands unwind, then synthesis occur from the origin of replication in opposite directions. It requires the following the things. First of all, it requires a protein for the separation of the DNA strand. Initiation of the DNA replication is always occur by the recognition of the origin with the help of a group of the proteins that form a pre-priming complex. These proteins are responsible not only to maintaining the separation of the parental strand but also helpful to unwind the double helix strand. These proteins are include DNA A protein, DNA helicase and a single standard बाइंडिंग डीएनए प्रोटीन्स. वन बाय वन हम इनके फंक्शंस को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं. डीएनए प्रोटीन जो है ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, उसके साथ बाइंड कर जाती है और ये सीक्वेंस जो है एटी रिच डिपेंडेंट रीजन होता है, जिसके नतीजे में जो है वो सेपरेशन ऑफ टू डीएनए स्टैंड जो है वो होता है. नेक्स्ट हमारे पास है डीएनए हेलिकेज. डीएनए हेलिकेज दिस इज बेसिकली enzymatic in nature. It binds to the two single stranded DNA near the replication fork and it moves to the double stranded regions that forcing the strands to apart from each other. हेलिकेज को एक्चुअली एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि वो दोनों स्ट्रैंड्स को इस तरह आपस में अलहदा कर रहा होता है जैसे कि रस्सी अगर आप देखो तो वो आपस में ट्विस्टेड होती है, तो रस्सी को खोलने के लिए जैसे हमें हाथों से जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो हेलिकेज एंजाइम जो है इसको भी एनर्जी चाहिए होती है जो कि हम एटीपी के फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड करते हैं. इस तरह दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अनवाइंड हो जाते हैं एट अ रीजन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क. जैसे ही हम उस रीजन को जो है दोनों स्ट्रैंड को आपस में एक दूसरे से अलहदा करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे सुपर क्वाइलिंग जो है वो जनरेट हो जाती है. डीएनए बी जो है एक्चुअली दिस इज द प्रिंसिपल हेलिकेज फॉर द रेप्लिकेशन इन केस ऑफ ई कोलाई. Its binding to the DNA requires an other protein which is known as DNA C. अब DNA A प्रोटीन, DNA हेलिकेज और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग की मदद से हमने स्ट्रैंड्स तो सेपरेट कर दिए, लेकिन स्ट्रैंड्स के सेपरेशन के नतीजे में सुपर क्वाइलिंग हो गई. यानी दोनों स्ट्रैंड पहले तो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड थे, जब हमने उनको अनट्विस्ट किया तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जो थे वो आपस का जो एक स्ट्रैंड था वो आपस में ही बल खाना शुरू हो गया. हम उस सुपर क्वाइलिंग को जो है वो रोकना चाहते हैं. तो उस सुपर क्वाइलिंग को रोकने के लिए हमें टाइप 1 और टाइप 2 डीएनए टोपोआइसोमरेसिस चाहिए होते हैं. इससे पहले कि हम प्रिवेंशन ऑफ सुपर क्वाइलिंग की तरफ मूव करें, हम एक चीज़ और एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग डीएनए प्रोटीन्स. ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है ये दोनों स्ट्रैंड्स के साथ जो है वो बाइंड अप हो जाती है. इसके बाइंडिंग का सबसे बेसिक पर्पस जो है वो ये होता है ताकि ये दोबारा से जो है वो खुद को वाइंड अप ना कर सकें. सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स एक्चुअली दीज आर नॉट द एंजाइम्स बट दे रेदर
work as to shift the equilibrium between double stranded and a single stranded DNA in the direction of a single stranded form. ये प्रोटीन्स दोनों स्ट्रैंड्स को न सिर्फ एक दूसरे से अलहदा रखती हैं बल्कि ये सिंगल स्ट्रैंड को जो है डीएनए पॉलीमरेज को जो है वो स्पेस प्रोवाइड करती है ताकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अनवाइंड स्ट्रैंड पे जो है वो एक्ट कर सके. नाउ वी मूव टूवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ द सुपर कॉइलिंग. जैसे ही दोनों स्ट्रैंड्स को मैंने बताया कि हम सेपरेट करते हैं तो वो स्ट्रैंड एक ही स्ट्रैंड जो है वो आपस में सुपर कॉइल्ड हो जाता है, मतलब ट्विस्ट कर जाता है, ओवरवाइंड कर जाता है. सुपर कॉइलिंग दो तरह से हो सकती है. ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग भी हो सकती है और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग भी हो सकती है. अगर ये सुपर कॉइलिंग बिहाइंड द रीजन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क हो तो ये नेगेटिव होगी, और अगर ये रेप्लिकेशन फोर्क से आगे है बन रही तो इसको हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं. इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए, क्योंकि एक फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल हमें जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो चाहिए होते हैं. अगर वो आपस में सुपर कॉइल कर जाएंगे तो उससे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डीएनए टोपोआइसोमेरेसिस एंजाइम यूज़ करते हैं, जिनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो सुपर कॉइलिंग को रिमूव जो है वो कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 डीएनए टोपोआइसोमेरेसिस की. ये एंजाइम जो हैं ये क्लीव कर देते हैं वन स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स, उसको सेंटर से जो है वो ब्रेकअप करते हैं, स्ट्रैंड्स की कटिंग होती है और दोबारा से जो है वो आपस में उनका फास्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है वो बन जाता है. लेकिन इसके नतीजे में एक निक जो है वो जनरेट हो जाती है और इंटेक्ट डीएनए स्ट्रैंड जो है वो ब्रेक होने से पहले उसके साथ जो है वो रिलीज हो जाता है. टोपोआइसोमेरेज 1 जो है वो एक्चुअली नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को जो है वो रिलीज़ करने में अपना बेसिक रोल जो है वो प्ले करती है. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 2 डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम. ये एंजाइम जो है ये टाइटली डीएनए डबल हेलिक्स के साथ बाइंड करता है, दोनों स्ट्रैंड्स को ब्रेकअप करता है और फिर जो सेकंड स्ट्रैंड होता है उसको स्ट्रेचअप करते हुए वो रीसील कर देता है. उस जिस जगह पे सुपर कॉइलिंग हुई होती है वो उस स्ट्रैंड को जो है वो उसकी कॉइलिंग रिमूव करने के बाद उसको अगेन जो है वो रीसील कर देता है. सुपर कॉइलिंग चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही सूरतों में इसको जो है वो एटीपी चाहिए होता है. डीएनए गाइरेज इज बेसिकली अ टाइप ऑफ type 2 DNA topoisomerase enzyme which is found in bacteria and plants. These have a ability to being able to introduce a negative supercoil into circular DNA using energy from the hydrolysis of ATP that help to facilitate the replication of the DNA, because negative supercoil neutralize the positive supercoil introducing during the opening of the double helix. This one is also help to the transient strand separation which is required for the transcription. नेक्स्ट है हमारे पास इससे पहले कि हम मूव करें आरएनए प्राइमर की तरफ, आरएनए प्राइमर से पहले डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होती है. डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या काम करता है कि वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उनको सेपरेट आउट करता है, फिर वो पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को जो है वो रीड आउट करता है 3' to 5' डायरेक्शन में. जो नया स्ट्रैंड डीएनए का बन रहा है उसकी डायरेक्शन उसके पेरेंटल स्ट्रैंड के ऑपोजिट होती है. सेज वी से कि पेरेंट स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है वो 3' to 5' है, तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा वो 5' to 3' बनेगा.
दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसमें एडवांस रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो मूव कर रहा होता है, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड का नाम बोलते हैं, और ये कंटिन्यूस मैनर में जो है वो इसकी सिंथेसाइज होती है। लैगिंग स्ट्रैंड ये वो स्ट्रैंड है जिसमें कॉपीड ऑफ डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क होती है और ये डिसकंटिन्यूस मैनर में बनता है, यानी छोटे छोटे पैचेस जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड के जो हैं वो बनना शुरू होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड के पैचेस जो हैं इनको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स का नाम देते हैं। ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जो हैं देन इनमें आपस में जो है वो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है वो डेवलप होता है और बाद में ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ज़रिए आपस में जुड़ जाते हैं। उसके बाद अगला काम हमारे पास होता है आरएनए प्राइमर का। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सेल्फ जो है इनिशिएट नहीं कर पाता सिंथेसिस ऑफ कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स को, बल्कि उसकी बजाय इसको चाहिए होता है एक आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जो है ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, इट रिक्वायर्स अ कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए प्राइमर that have a free hydroxyl group at its 3' end of the RNA. This hydroxyl group is served as the first receptor of the deoxynucleotides. डीएनए प्राइमर को जो है वो काम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 प्राइमेज आल्सो नोन एज डीएनए जी एंड प्राइमोसोम। Specific RNA polymerase also known as primase, which is required for the synthesis of a short stretches of the RNA that are complementary and anti-parallel to the DNA strand. These short RNA sequences are constantly synthesized at the replication fork on the lagging strand, but only one RNA sequence is required for the replication in case of the leading strand. Leading strand में हमें सिर्फ एक RNA प्राइमर की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया लैगिंग स्ट्रैंड में शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो बन रहे होते हैं, तो हर फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड के लिए जो है वो एक अलग से आरएनए प्राइमर की हमें ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड वन थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आरएनए प्राइमर, दैट इज़ अवर प्राइमोसोम. Addition of primase convert the pre-priming complex of a proteins to chromosomes, and this chromosomes makes the RNA primer, which is required not only for the leading strand that initiate the Okazaki fragments as well as in the lagging strand. Then next is a chain elongation. अब क्या होगा कि अब जो है वो 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड होते जाएंगे और चेन जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज इनलोगेट अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. This one takes place with the help of a DNA polymerase 3. As in case of RNA primer, this has a free 3' hydroxide group which act as a acceptor for the first deoxyribonucleotide. DNA polymerase 3 facilitate the adding of the nucleotides along a single stranded template. DNA polymerase 3 also have a highly processive enzymes that remains the binding template as well as to move it, and not helpful to diffuse and rebind by adding the nucleotides. यानी डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा कि वो उसमें फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो ऐड करता जाएगा, लेकिन उनकी रीबाइंडिंग या उसको डिफ्यूज़ करना जो है वो डीएनए पॉलीमरेज की जो है वो एक्टिविटी में नहीं आएगा. डीएनए पॉलीमरेज 3 की पोजेसिविटी जो है वो बीटा सब यूनिट रिंग की वजह से जो है वो मूव करती है, जो कि एज अ स्लाइडिंग रिंग के तौर पर जो है वो या स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप के तौर पर जो है वो एक्ट करता है. ये फॉर्मेशन ऑफ क्लैंप जो है ये एक वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. क्लैंप एक्चुअली लाइक टाइप ऑफ लोडर होता है और इसको भी फॉर फॉर्मेशन फॉर द मूवमेंट ऑन द फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स, क्लैंप को डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर मूव करने के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, जो कि इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से जो है वो मिल रही होती है.
चेन इन लोकेशन का नेक्स्ट काम जो है वो प्रूफ रीडिंग होता है, मतलब जो न्यूली सेंसिटाइज डीएनए है उसकी प्रूफ रीडिंग भी साथ साथ करते जा रहे हैं। आइदर के न्यूक्लियोटाइड जो हम ऐड हो रहे हैं क्या वो एक प्रिसाइज और करेक्ट मैनर में ऐड होते जा रहे हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज की ये एबिलिटी है कि वो साथ साथ उसकी प्रूफ रीडिंग जो है वो करता जाता है। Because this is a highly important for the survival of organism, the new nucleotide sequence that is added is free from all the errors. Misreading of the template sequence could result the harmful as well as the deleterious effect that cause the mutation. As the nucleotide is added in a chain during the chain elongation process, DNA polymerase check to make added of new nucleotide, either they have a correct sequence or not. This activity is also known as 3' to 5' exonuclease activity. This 3' to 5' exonuclease activity is important that helpful to remove the nucleotide if they are mismatchingly attached, or if this nucleotide is misfit in the DNA strand. चेन इनलोगेशन का में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसीजर जो होता है वो होता है एक्सेशन ऑफ आरएनए प्राइमर एंड देयर रिप्लेसमेंट बाय द डीएनए। अब 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी के ज़रिए जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड बनता जा रहा है, लेकिन इसी के पैरेलल जो है वो डीएनए पॉलीमरेज की 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, जो कि न्यूली डीएनए स्ट्रैंड जो बन रहा है उसकी प्रूफ रीडिंग जो है वो करती रहती है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसके पास भी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, लेकिन वो हाइड्रोलिटिकली सबसे पहले आरएनए प्राइमर को जो है वो रिमूव करता है, क्योंकि आरएनए प्राइमर का बेसिक फंक्शन था इनिशिएशन करना। न्यूक्लियोटाइड के जो न्यू स्ट्रैंड बनना था उसमें न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो था वो एक स्पेस उसको जो था वो प्रोवाइड कर देता है। तो आरएनए प्राइमर की जो है वो अब रिमूवल जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 या डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो उसको जो है वो कर देते हैं। जैसे ही आरएनए प्राइमर जो है वो रिप्लेस होता है तो न्यूली सेंसिटाइज्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इसमें ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो है वो जो चांसेस ऑफ एरर होते हैं उनको भी फर्दर रिमूव कर देता है। कंपैरिजन ऑफ 5' to 3' एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्चुअली 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 की अलाउ करती है कि वो हाइड्रोलिटिकली रिमूव कर सके 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स को, और ये 20 to 30 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर्स को जो है वो फाइंड आउट करती है। लेकिन जो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो अलाउ कर रही होती है कि वो हाइड्रोलिटिकली रिमूव कर सके अगर कोई मिसप्लेस्ड न्यूक्लियोटाइड उसमें जो है वो ऐड हो जाता है एट इट्स 3' एंड ऑफ द 3' ग्रोइंग एंड ऑफ द डीएनए, डेट इंक्रीजिंग द फिडेलिटी ऑफ द रेप्लिकेशन। नेक्स्ट इज अवर डीएनए ligase. Formation of the phosphodiester linkage that takes place between the 5' group of the phosphate on the DNA chain synthesized by DNA polymerase 3 and 3' hydroxyl group by the DNA ligase. The joining of these two stretches of the DNA requires the energy that the organism is provided by the cleavage of the ATP, and this ATP is converted into inorganic phosphate as well as ATP. After that, the process of termination is occur. Replication termination in the E. coli is mediated by a sequence of the specific binding proteins. These are known as terminus proteins that help to terminate the replication by binding to the termination sites. These sites are also known as TER sites on the DNA that stopping the movement of further DNA polymerase. एंड पे एक ओवरऑल ब्रीफ सी समरी है जो हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम जो हैं वो
अनवाइंड कर देते हैं डीएनए के डबल स्ट्रैंड को। डीएनए का डबल स्ट्रैंड आप देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो चल रहा है। सेकेंड स्टेप में सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। इन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए बी, इनका फंक्शन ये है कि ये जो सिंगल स्टैंड सेपरेट हुआ है इसको स्टेबलाइज रखती है। दो स्टैंड हमारे पास होते हैं जो सर्व करते हैं एज अ टेम्पलेट। एक स्टैंड हमारे पास लीडिंग स्टैंड होता है जिसको हम कंटिन्यूस स्टैंड भी बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। पेरेंट की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। स्काई ब्लू में अगर आप देखें तो जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो इसकी सिंथेसिस हो रही है। एक्चुअली ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग रीजन इज़ नोन एज अ रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब ये ऊपर वाला स्टैंड जो है इसको हम लीडिंग स्टैंड बोलेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस वे में जो है इसमें एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो होता जा रहा है। नीचे वाले स्टैंड को हम लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। इसकी सिंथेसिस डिसकंटिन्यूस वे में होती है। प्राइमेज जो है वो शॉर्ट आरएनए प्राइमर सीक्वेंस जो है वो ओरिजिनेट करता है। लीडिंग स्टेज में सिर्फ एक ही आरएनए प्राइमर जो है वो चाहिए होता है, लेकिन इन केस ऑफ लैगिंग स्टैंड आरएनए प्राइमर जो है वो शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो कम्प्लीमेंट्री होता है पेरेंट स्टैंड की। ये मैक्सिमम 10 to 12 फ्रेगमेंट्स जो है वो जनरेट करता है, डेट इज़ नोन एज ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। इनको एक्सटेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेसिस के ज़रिए। ये जो रेड में है दिस इज़ आवर आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर से आगे फर्दर न्यूक्लियोटाइड ऐड होना शुरू हुए, ये ओकाज़की फ्रेगमेंट बना। फिर कुछ बीच में गैप आया, उसके बाद फिर आरएनए प्राइमर, फिर ओकाज़की फ्रेगमेंट, फिर आरएनए प्राइमर, फिर ओकाज़की फ्रेगमेंट। इस तरह जो सिंथेसिस हो रही है लैगिंग स्ट्रैंड की वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो हो रही है। ऊपर जो था वो 5 to 3 जो था वो मूव कर रहा था, यहाँ जो है वो 5 to 3, लेकिन ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क है। जो लीडिंग स्टैंड था टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क है और जो लैगिंग स्टैंड है वो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क है। फिफ्थ स्टेप में आरएनए प्राइमर रिप्लेस्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेसिस। यहाँ पे डीएनए लाइगेज आता है। आरएनए प्राइमर जो है वो आरएनए डीएनए पॉलीमरेसिस के ज़रिए जो है यहाँ से निकल गया। डीएनए लाइगेजेस जो हैं वो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के ज़रिए ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जो है वो आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ओवरऑल जो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन होती है वो टूवर्ड्स दी रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो मूव कर रही होती है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो क्लैंप होता है। ये क्लैंप जो है ये स्ट्रैंड के साथ साथ फर्दर मूव करता रहता है। जितना स्ट्रैंड हमें नए सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए चाहिए है ये उतना ही डीएनए को जो है वो अनवाइंड करेगा। पीछे से डीएनए जो है वो उतना ही वाइंड अप रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन अबाउट दी प्रोकैरियोट्स। क्योंकि जीन एक्सप्रेशन को जब हम जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वो उसकी फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास रेप्लिकेशन से होता है जो फर्दर आगे मूव करता है। होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।